الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوسر الحبيب إلى الحبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے 2 فرمان مبارکہ تلاوت کیے ہیں۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فریقین کو اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میرے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا، سجایا، آراستہ کیا، اور رب العالمین نے اس ساری کائنات کو بنا کر، سجا کر، آراستہ کر کے کم و پیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ خود خالق کائنات کو یہ کہنا پڑا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ پر انعام اتنے کیے ہیں، نعمتیں اتنی دی ہیں، احسانات اتنے کیے ہیں، اگر تو ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر اللہ کے سامنے دست پرسہ عرض کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میری دی ہوئی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، غور یہ کرنا ہے، توجہ طلب بات یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور دی کیوں ہیں؟ رب العالمین نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا۔ اگر انسان کائنات کے اندر غور کرے، ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ آسمانوں کی بلندی کا نظام دیکھیں تو خدمت انسان کی ہے،
सूरज की रोशनी का निज़ाम देखिए, खिदमत इंसान की है। चाँद की चमक का निज़ाम देखिए, खिदमत इंसान की है। सितारों की जगमगाहट देखिए, खिदमत इंसान की है। बादलों का बरसना देखिए, खिदमत इंसान की है। हवाओं का चलना देखिए, खिदमत इंसान की है। ज़मीन का पानी के ऊपर बिछाव देखिए, खिदमत इंसान की है। ज़मीन में से गल्लों का उगना, ये खिदमत इंसान की है। पहाड़ों का गाड़ दिया जाना, ये खिदमत इंसान की है। मेरे अल्लाह यही दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि ए मेरे बंदे, इस कायनात के अंदर गौर कर और रब को पहचान ले। गौर कर कि जिस रब ने इतना बड़ा आसमान बनाया है, वो रब खुद कितना बड़ा होगा। जिस रब ने इतने बड़े मजबूत पहाड़ बना दिए, वो खुद कितनी ताकत वाला होगा। व इदल जिबालु सुय्यिरत, मेरा रब इतना बड़ा है, मेरे रब का आर्डर इतना ज़बरदस्त है। एक दिन आएगा, इदल शम्सु कुव्विरत, ये इतना बड़ा सूरज बेनूर हो जाएगा। व इदल नुजूमु इंकदरत, सितारे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। व इदल जिबालु सुय्यिरत, पहाड़ मजबूत ज़रूर नज़र आ रहे, लेकिन ये भी राई के गालों की तरह उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह हमें ये समझाना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं, ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि मेरे बंदे, रब के मुकाबले में तू कुछ भी नहीं है। रब के मुकाबले में तू कुछ भी नहीं है। और ए उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, तुम्हें तो ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि और उम्मतों को सिर्फ नबी मिले हैं, और उम्मतों को सिर्फ रसूल मिले हैं, और उम्मतों को सिर्फ पैगंबर मिले हैं, लेकिन इस उम्मत को इमामुल अंबिया मिले हैं। इस उम्मत पर अल्लाह ने करम फरमाया है, एहसान फरमाया है। हज़रत ईसा दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह इस उम्मत में पैदा कर दीजिए। हज़रत मूसा दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दीजिए। लेकिन मैंने और आपने मांगा नहीं है, मैंने और आपने दरख्वास्त नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, सिफारिश नहीं कराई, लेकिन अल्लाह ने बग़ैर मांगे इस उम्मत में पैदा कर दिया। तो मेरे दोस्तों देखिए, जितनी भी इंसान को अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उन नेमतों में हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, हज़रत ईसा के आखिरी उम्मती तक, सारे इन नेमतों में मुश्तरक हैं। लेकिन मुझे और आपको जो नेमत मिली है वो और किसी उम्मत को नहीं मिली। जब अल्लाह ने नेमत बड़ी दी है, इनाम बड़ा दिया है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम क्या दिया, रुतबा क्या दिया। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, वक़्त मुख्तसर है, सिर्फ एक झलक देकर मैं आगे बात को बढ़ाऊंगा। मेरे अल्लाह फरमाते हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे लाडले हबीब। एक और बात भी अर्ज़ करूँ, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं। तवज्जो, खलील माना क्या है? खलील का माना भी अल्लाह का दोस्त, हबीब का माना भी अल्लाह का दोस्त, लेकिन फ़र्क क्या है? खलील अल्लाह का वो दोस्त जो मांगे अल्लाह अता कर दे, जो मांगे अल्लाह अता कर दे, जो ज़रूरत पड़े अल्लाह अता कर दे। और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जो जिसको बग़ैर मांगे सब कुछ दे दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को नवाजा है। हज़रत आदम का इस दुनिया से जाने का वक़्त आया, बेटे को नसीहत की, बेटे को वसीयत की, नसीहत की कि बेटा जब भी अल्लाह से मांगने की ज़रूरत पेश आए और दुआ कबूल ना हो रही हो, अल्लाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे देना। तवज्जो है, बेटे ने क्या अर्ज़ किया कि अब्बा जान मोहम्मद कौन है, अब्बा जान मोहम्मद कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा बात इतनी सी है, थोड़ा थोड़ा गुते थिया हुआ। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह जज़ा खैर देवे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि बेटा बात इतनी सी है कि अगर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना ना होता
اللہ आसमानों को बुलंदी ना देते, अल्लाह सूरज को रोशनी ना देते, चांद को चमक ना देते, सितारों को जगमगाहट ना देते, बादलों को बरसना नसीब ना करते, हवाओं को चलना नसीब ना करते, ज़मीन को पानी के ऊपर बिछाया ना जाता, दरियाओं को रवानी ना मिलती, समंदरों को तुग़यानी ना मिलती, और परिंदों को चहचहाहट ना मिलती, दरिंदों को चंघाड़ना ना मिलता, और हशरातुल अर्ज़ को रेंगना ना मिलता, और जन्नत को आरास्ता किया ना जाता। और ऐ मेरे बेटे, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आना ना होता, तेरे अब्बा आदम को भी वजूद ना मिलता। तो मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनामात बड़े दिए हैं। मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को नवाजा इतना है कि याद रखिए, मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरे आपके ज़िम्मे क्या है? मेरे आपके ज़िम्मे ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना। एक और बात भी अर्ज़ करूं, एक हदीस पाक के अंदर आता है, एक सहाबी फरमाते हैं, मैं हज़रत खालिद बिन वलीद का मेहमान बना। किसका मेहमान बना? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जब फरमाते हैं, जब मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मेरे सामने दस्तरखान बिछाया, मैंने देखा दस्तरखान इंतहाई मैला। मुझे थोड़ी तबीयत में नागवारी हुई कि ये दस्तरखान साफ़ सुथरा नहीं है। खैर खामोश हो गया। खाना रखा गया, खाना खाया, करीब आग जल रही थी। जब खाने से फरागत हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो कपड़ा उठाया और आग में डाल दिया। तो जो है, कपड़े को आग डाल दिया और आग कपड़े को खा जाती है। लेकिन हज़रत मेहमान फरमाते हैं, मैंने थोड़ी देर के बाद देखा हज़रत खालिद बिन वलीद ने वही कपड़ा दोबारा निकाला। मैं देखकर हैरान रह गया कि कपड़ा तो साफ़ है, उसकी मैल कुचैल ख़त्म हो चुकी, लेकिन आग ने कपड़े पर असर नहीं किया। फरमाते हैं, मैं अब बर्दाश्त न कर सका कि मामला क्या है, माजरा क्या है, थोड़ी सी वजाहत तो कर दीजिए, मुझे ज़रा समझा तो दीजिए। पहले दस्तरखान बिछाया, मैला था, फिर आपने उसको धोने की बजाय आग में डाला, फिर आग ने उस पर असर क्यों नहीं किया? हज़रत खालिद बिन वलीद का जवाब सुनिए। और मुसलमानों, अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर लीजिए और आज से अज़म कर लीजिए कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा मेरे नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं गुज़रेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या इरशाद फरमाया कि ए मेरे दोस्त, जैसे आज आप मेरे मेहमान बने, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे मेहमान बने थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रंजा फरमाए थे, उनकी मैंने खिदमत की थी, उनके सामने भी खाना पेश किया था, उनके सामने यही दस्तरखान रखा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाने के बाद इस कपड़े से हाथ साफ़ किए थे। जो वो दिन और आज का दिन है, मुझे ये गवारा नहीं होता कि इस कपड़े को मैं पानी से धो लूँ। पानी मैं कहाँ करूँगा, मैं इस कपड़े को आग में डाल देता हूँ। आग इसकी मैल कुचैल तो खींच लेती है, इसको कहती कुछ नहीं है।